Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students, this is class of physics for second year. Students, in the previous lecture we were discussing about the current electricity or electrodynamics. We have defined current electricity as that branch of physics which deals with the charges in motion. इससे पहले स्टूडेंट्स आप लोग चैप्टर नंबर 11 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ आए हो and we have defined electrostatics as that branch of physics in which you study the properties and behavior of the charges which are at complete rest. फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने एक सिंगल चार्ज के लिए उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होती है उस चीज़ को आप लोगों ने स्टडी किया था। एक सिंगल चार्ज जो अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना रहा होता है या अपने इर्द गिर्द जो पोटेंशियल बना रहा होता है, इन दोनों के लिए अलग-अलग आप लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्म्स ड्राइव की थी। एंड देन एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू स्टडीड अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कैपेसिटर्स. And then we have started our new chapter, that is the electrodynamics. And in the last lecture हम लोगों ने electrodynamics या current electricity से related कुछ थोड़े से basic concepts को define किया था. Like we have defined conductors, insulators, semiconductors, alternating current, direct current, and very important concept, that is concept of conventional and electronic current. कंडक्टर्स को आप लोगों ने स्टूडेंट्स डिफाइन किया था कि ये वो मटेरियल्स होते हैं इन विच द करंट कैन इजीली फ्लो. इंसुलेटर्स को आप लोगों ने डिफाइन किया था, दीज आर दोज मटेरियल्स दैट डू नॉट परमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इसके बाद आप लोगों ने सेमीकंडक्टर्स को डिफाइन किया था कि सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जो ना तो प्योर कंडक्टर्स हैं ना ही प्योर इंसुलेटर्स हैं, बल्कि कुछ प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर्स ही हैं इनकी और कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी इंसुलेटर्स ही हैं. एंड आई हैव टोल्ड यू दैट वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये इंसुलेटर के तौर पे बिहेव कर रहे होते हैं. एंड एट द टेम्परेचर अबव रूम टेम्परेचर दे स्टार्ट बिहेविंग एज ए conductors. And finally we studied about the concept of electronic and conventional current. I told you कि before the discovery of electron it was thought that जो metals में current flow करता है that is entirely due to flow of positive charges. But later on with the discovery of electrons scientists came to know that metals में जो current flow कर रहा है that is due to flow of the electrons. So the current that is due to flow of positive charges is given the name conventional current because it was convention to study the current in metals by the flow of positive charges, while the current in the conductors or in the metals due to the flow of electrons is given the name electronic current. एंड वी हैव कंक्लूडेड दैट जो इलेक्ट्रॉनिक करंट की वजह से इफ़ेक्ट होते हैं वही इफ़ेक्ट्स कन्वेंशनल करंट की वजह से भी होते हैं. सो वी कैन से सिंपली दैट कि हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट के कॉन्सेप्ट को ड्रॉप कर लें और सिर्फ कन्वेंशनल करंट के कॉन्सेप्ट को स्टडी करें तो हमारे पास वही रिजल्ट्स आएंगे जो इलेक्ट्रॉनिक करंट को स्टडी करने की वजह से आते हैं. In this lecture students we are going to study another important concept, that is the concept of drift velocities within the conductor under the application of external electric field. So अपना आज का lecture start करते हैं with the definition of the current electricity or electrodynamics, as we have defined this much in a previous lecture that electrodynamics is simply a branch of physics that deals with the properties and behavior of charges in motion. Here the key word is charges in the motion. The charges in motion, what are different properties and what will be their behavior. Okay, now suppose that आपके पास स्टूडेंट्स कोई भी एक कंडक्टर का पीस है, लेट्स से आपके पास कोई भी एक वायर का पीस है और आप सिंपली क्या करते हो, इस वायर के दोनों एंड्स को बैटरी के दो टर्मिनल्स के साथ अटैच कर देते हो. एक एंड को आप लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देते हो और एक एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देते हो. तो हमें पता है इस मेटल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जब आप इसको बैटरी के एक्सटर्नल टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करोगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक खास डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे. उस खास डायरेक्शन में वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स.
एंड सिंस वी नो दैट किसी भी एक कंडक्टर के छोटे से पीस में भी बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो हम लोग किसी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के मोशन को तो नहीं ट्रेस कर सकते, हम लोग एज अ होल एवरेज कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहे होते हैं. सो वी कैन डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कि जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर में एक खास डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो वी कैन डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एज the average velocity with which the electrons are drifted in particular direction in the metals under the application of external electric field. ओके स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को एक बार दोबारा हम लोग देख लेते हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं. द फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज़ द एवरेज कॉन्सेप्ट, दैट इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी. Okay, average velocity with which the electrons are drifted in particular direction, एक खास डायरेक्शन में, और वो कौन सी डायरेक्शन होगी आपको पता है. आप लोगों ने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि जब कभी भी आप लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं. So it means that this direction will be opposite to the applied electric field. Okay, in the metals under the application of external electric field. स्टूडेंट्स, किसी भी जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर चार्जेस हैं तो हर चार्ज की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेट करंट प्रोड्यूस नहीं होता है. नेट करंट अगर आपने फ्लो करवाना है तो आपको मस्ट है कि आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है. सो दिस फील्ड ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन पर्टिकुलर डायरेक्शन शुड बी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. इट शुड नॉट बी द फील्ड ऑफ चार्जेस within the conductor. Okay, the magnitude of drift velocity within which the electrons in a conductor move in particular direction is almost 10 raised to power minus 5 to 10 raised to power minus 4 meters per second. V is the symbol for the velocity and D in the subscript indicates that this velocity is actually drift velocity. ओके इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा फिगर के साथ एक्सप्लेन कर लेते हैं. सो लेट अस कंसिडर दैट मेरे पास कोई भी एक कंडक्टर है, दिस मच इज़ अ कंडक्टर इन द सिलेंड्रिकल फॉर्म. मेरे पास सिलेंड्रिकल फॉर्म में ये एक कंडक्टर है एंड ऑल दीज ब्लू डॉट्स, दीज आर रिप्रेजेंटिंग द चार्जेस, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर. सो अगर इस कंडक्टर के अक्रॉस किसी किस्म की भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई न करूं, सिंस आई कैन सी हियर दैट नो वायर्स आर कनेक्टेड टू दिस मच कंडक्टर एंड दिस मच कंडक्टर इज फ्री ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस सिचुएशन में क्या होगा स्टूडेंट्स कि जितने भी अंदर चार्जेस हैं, आई हैव रिप्रेजेंटेड ओनली फ्यू चार्जेस. ऑब्वियस सी बात है, इतने से पीस ऑफ कंडक्टर में देयर कैन बी मोर देन बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो होगा क्या स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये रैंडम मोशन में होंगे जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है. मे बी एक इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा, एक लेफ्टवर्ड, एक राइटवर्ड, इस तरह एक डाउनवर्ड, अपवर्ड, एंड देयर मोशन विल बी रैंडम. इस इलेक्ट्रॉन के इस साइड मोशन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज बीइंग कैंसल्ड आउट बाय द फ्लो ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इन दिस मच डायरेक्शन. The current produced by the motion of this electron in this direction is being cancelled out by the motion of this electron in upward direction. Likewise, जितने भी electrons होंगे वो एक दूसरे के motion की वजह से जो current produce हो रहा है उसको cancel out कर रहे होंगे. So we can simply say that without application of external electric field, net current in the conductor will be equal to 0. और इनकी ये जो रैंडम स्पीड्स हैं, दीज रैंडम स्पीड्स डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर के ऊपर इन ये स्पीड्स कितनी होती है 10 रेज़्ड टू पावर 5 से लेके 10 रेज़्ड टू पावर 6 मीटर्स पर सेकंड तक हो सकती हैं. एंड कीप इट इन योर माइंड, दिस वाज वंस एमसीक्यू आस्क्ड इन द ईटीआ कि इनकी जो रैंडम स्पीड्स हैं, दी रैंडम स्पीड्स एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड एज द थर्मल स्पीड्स और थर्मल वेलोसिटी. Random speeds of free electrons is temperature dependent, and with increase in temperature
with increase in temperature their random motion will also increase. Now suppose that यही आपके पास जो cylindrical form में कंडक्टर है, हम क्या कर देते हैं, इस कंडक्टर को एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स जिसको मैंने V के साथ रिप्रेजेंट किया है उसके साथ हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। सिंपली कंडक्टर की एक साइड को आप लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें, दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दें। सो व्हाट हैपेंस, नेट करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन दिस सर्किट। अब हम लोग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मच कंडक्टर देखते हैं। सिंस ये वाली कंडक्टर की साइड पॉजिटिव टर्मिनल साथ कनेक्टेड है, ये वाली नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड विच विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड। नाउ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड they feel repulsion from this side and attraction towards this side. So सारे के सारे electrons एक particular direction as I have mentioned over here, particular direction, और वो कौन सी particular direction है, that is opposite to the electric field, वो opposite to the electric field move करने लग जाएंगे। okay? अब वो जो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने लग गए हैं, वो इस तरह से नहीं मूव करने लगे कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, बट स्टिल under the application of external voltage source और under the application of external electric field, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो स्टिल रैंडम मोशन ही परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन अब उनका रैंडम मोशन क्या है, एक हाफ साइड उस रैंडम मोशन को ड्रिफ्ट मिल गई है। लेट अस एक्सप्लेन दिस बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये जो ब्लैक मार्कर से मैंने ये लाइंस ड्रॉ की हैं, दीज मच लाइंस आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन था, उसने अपना सपोज किया यहाँ से मोशन स्टार्ट किया, यहाँ से मूव करके वो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आया, यहाँ पे किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन की, रिफ्लेक्ट बैक हो गया, यहाँ तक मूव करके आया, इधर एक और कोलिजन हुई, यहाँ पे एक और कोलिजन हुई, और वो फाइनल इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गया। दिस इज इट्स मोशन विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो इस इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टिल रैंडम ही है। यू कैन सी इट्स मोशन इज नाउ बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू मार्कर। इसका मोशन अभी भी रैंडम ही है, लेकिन ये रैंडम मोशन अब एक हाफ साइड की तरफ ड्रिफ्ट हो गया है। सो दिस मोशन विच इज बीइंग ड्रिफ्टेड इन दिस डायरेक्शन, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो वी कैन सिंपली से हियर, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं सिंपली कि इलेक्ट्रॉन स्टिल रैंडम मोशन ही परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसका मोशन क्या हो गया है, एक साइड के ऊपर ड्रिफ्ट हो गया है। सो इट्स द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड नाउ बी समवट लाइक दिस। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से ड्रिफ्ट करने लग गए हैं, इस साइड की तरफ, इस साइड की तरफ कोई इस तरह से ड्रिफ्ट करने लग गया है। इनका मोशन स्टिल रैंडम ही है, लेकिन क्या है, अब सारे का सारा मोशन एक हाफ साइड के ऊपर ड्रिफ्ट हो गया है। नाउ दिस वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग ड्रिफ्टेड फ्रॉम नेगेटिव साइड टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ कंडक्टर, दिस मच वेलोसिटी इज कॉल्ड एज द drift velocity of the electrons, and its magnitude is 10 raised to power -4 to -5 meters per second। कुछ हद तक ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स को बढ़ाने से ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ सकती है। सो अगर आपके पास कोई भी एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंबल ऑन टिपिकल वोल्टेज सोर्स सिंबल। सो अगर आपके पास वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, आप लोग इस वोल्टेज सोर्स का अगर वोल्टेज बढ़ाओगे, एक्सटर्नल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी और इनका मोशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉम द नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉम नेगेटिव साइड टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड ड्रिफ्ट होने लग जाता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ऑल दैट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड दैट विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम थर्मल मोशन में हैं, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, इलेक्ट्रॉन स्टिल रैंडम मोशन में है, लेकिन उनका रैंडम मोशन अब एक साइड की तरफ ड्रिफ्ट हो गया है। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। नाउ अब हम देख सकते हैं इस जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में एक या इस सर्किट में करंट फ्लो होने लग गया है। नाउ व्हाट कैन बी द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द करंट? दीज पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ करंट इज़ नॉट डिस्कस्ड इन योर बुक, बट जो 2014 या 13 से पहले बुक फॉलो करवाई जाती थी, उस बुक में इफेक्ट्स ऑफ करंट डिस्कस्ड है।
हम लोग यहाँ पे भी इन इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट को डिस्कस करेंगे। द रीज़न इज़ दैट आपका जो 2018 का पेपर बन गया है दैट इज़ 60% फ्रॉम द प्रीवियस बुक, सो मोस्ट प्रोबेबली इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट से MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द इफ़ेक्ट्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, और सिंपली यू कैन से दैट इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। Okay, the first effect that is produced by the flow of current is this is a very common effect, and this effect is known by the word heating। जब कभी भी किसी कंडक्टर में भी करंट फ्लो करेगा, किसी भी कंडक्टर में जब भी करंट फ्लो करेगा तो वो कंडक्टर हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगा। वाई दिस कंडक्टर स्टार्ट गेटिंग हीट अप व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर द व्हेन द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग विद इन दैट कंडक्टर। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, जब कभी भी करंट किसी कंडक्टर में फ्लो करेगा तो करंट के फ्लो होने की वजह से, एक्चुअली करंट क्यों फ्लो कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक खास डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स एक खास डायरेक्शन में मूव करें, सिंस इतने से पीस ऑफ कंडक्टर में देयर कैन बी बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जब वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक खास डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कलिजन करेंगे। ड्यू टू दिस कलिजन इलेक्ट्रॉन्स आपस में भी कलिजन करेंगे, इलेक्ट्रॉन विद द लेटेस्ट आयंस भी कोलाइड करेंगे। ड्यू टू दिस कलिजन क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगा, और इसी कलिजन की वजह से वो कंडक्टर या वो जो पार्ट है वो जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है दैट स्टार्ट गेटिंग हीट अप। सो वी कैन से दैट द हीटिंग ऑफ कंडक्टर, इन द रीज़न बिहाइंड heating up of a conductor when the current starts flowing in that conductor is due to the collision, ओके। अब इस हीटिंग इफेक्ट का आपकी डेली लाइफ में यूज़ क्या है, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन इन योर डेली लाइफ। यू कैन ईजिली सजेस्ट बाय योरसेल्फ the applications of the heating। The first and very common example is the electrical iron। आप लोग सिंपली आयरन को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर देते हो, आयरन गेट्स हीट अप एंड यू कैन ईजिली प्रेस योर क्लॉथ। सो द फर्स्ट एंड वेरी कॉमन एप्लीकेशन इज द इलेक्ट्रिकल iron। द सेकेंड एप्लीकेशन टोस्टर, जो आप लोग मॉर्निंग के टाइम यूज़ करते हो। सो इलेक्ट्रिकल टोस्टर, ओके। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल रॉड्स यूज़ किए जाते हैं टू हीट अप वाटर फॉर डिफरेंट पर्पसेस। सो थर्ड एप्लीकेशन इज़ द इलेक्ट्रिकल रॉड्स। इसके अलावा आप लोग घर में ड्यूरिंग विंटर सीजन इलेक्ट्रिकल हीटर्स यूज़ करते हैं। सो अनदर एप्लीकेशन इज़ द इलेक्ट्रिकल heaters and many much more application would be like this। Okay, this was the first effect that is related due to the flow of the current। Okay, second effect that is produced due to the flow of current। जब कभी भी करंट फ्लो करता है, आप लोगों ने इससे पहले अपनी मैट्रिक की क्लास में भी ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा कि जब कभी भी करंट फ्लो करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है ड्यू टू फ्लो ऑफ दैट करंट। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस होती है, तो कीप इट इन योर माइंड दैट इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, कि जब कभी भी चार्ज फ्लो करेगा उसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएटेड होगी। ये जस्ट लाइक इसी तरह से है जिस तरह किसी भी एक चार्ज का मास है, दैट इज़ इट्स इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। किसी भी एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज इट्स इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सो द मैग्नेटिक फील्ड, सिंस वी हैव बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग, जब कभी भी करंट प्रोड्यूस होता है तो उन बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। सो वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इट्स सिंपली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और इससे पहले आप लोग अपनी मैट्रिक की क्लास में एक एक्सपेरिमेंट भी करके आ चुके हैं, लाइक कोई भी इस तरह से आपके पास एक वायर हो, उस वायर में करंट फ्लो कर रहा हो। लेट अस सपोज दैट इस वायर में हम लोग कन्वेंशनल करंट ले रहे हैं, जो कन्वेंशनल करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है। I is representing the current and the arrow is representing that current is flowing in the upward direction। आपके पास आपकी इस तरह की वायर को किसी भी एक प्लेन से, किसी भी एक इस तरह से
परपेंडिकुलर प्लेन से फ्लो करवाएं। तो अगर आपके पास कोई आयरन स्प्रिंग्स हों, आप लोग इधर स्प्रिंग कर दें, यू विल सी दैट जैसे ही करंट फ्लो करेगा वो आयरन स्प्रिंग्स खुद को इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में अरेंज कर देंगी। सो इट मीन्स दैट जब कभी भी करंट फ्लो करेगा तो उस जिस वायर में करंट फ्लो कर रहा है उस वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ द कंसेंट्रिक करंट, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय द हेल्प ऑफ फेमस रूल नोन एज राइट हैंड रूल। सिंपली आप लोग जिस वायर में करंट फ्लो कर रहा है उस वायर को, बेयर्ड वायर को नहीं, उस वायर को सिंपली आप लोग क्लच करें एंड यू इन सच अ वे दैट योर थंब पॉइंट्स in the direction of conventional current, then your curling fingers would indicate direction of the magnetic field. So this is the magnetic effect that is produced due to the flow of the electric current, and you will be studying in detail about these magnetic effects in your chapter electromagnetism most probably. Okay, what are applications of the magnetic effect of the current? Applications of magnetic effect of the current. Okay, the first application, very simple application, you can design simply compass by the help of this magnetic effect. अगर आप लोगों ने किसी भी वायर में देखना है करंट फ्लो कर रहा है या नहीं, तो सिंपली कंपस नीडल को इसके पास लेके जाएं। अगर वो डिफ्लेक्ट हो रही है मीन्स यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है इट मीन्स कि उस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। सो द फर्स्ट एप्लीकेशन इज डिटेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट by the help of compass needle. Detection of electric current by the help of compass needle. Compass needle. Okay, second application, आपकी घर की जितनी इंडक्शन मोटर्स हैं, the motors that you use to pump water from low gravitational point to high gravitational point, all of these motors work on this much application. So आपको जो induction motors हैं, and you will be studying in detail about the induction motors in the later chapters. Induction motors, and these induction motors are very important कि किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को देखने के लिए ये चीज़ देखी जाती है कि वो कंट्री कितनी इंडक्शन मोटर्स यूज़ कर रही है, कितनी कंज्यूम कर रही है, कितनी डेवलप कर रही है। आप अगर अपने इर्द गिर्द देखो तो आप लोगों को हर जगह कंडक्शन मोटर्स वर्किंग करते हुए नजर आएंगी। ओके, these are the applications related to the magnetic field, magnetic effect produced by the current. Okay, the third effect is the chemical effect produced due to the flow of electric current. This is a concept that you have studied in your subject chemistry, the famous concept called as the electrolysis. This is a concept in which you see कि आपके पास मोल्टन स्टेट में एक इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट में जैसे ही आप लोग करंट फ्लो करवाते हो तो आयंस की डिकम्पोजिशन हो जाती है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोलिसिस। अब इस केमिकल इफ़ेक्ट का इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ द करंट? इसकी एप्लीकेशंस आप लोगों ने पढ़ी होंगी प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के लिए, या आप लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए मोस्ट प्रोबेबली इसको यूज़ करते हैं। सो इट्स एप्लीकेशंस आर फॉर द प्योरिफिकेशन पर्पसेस एंड सेकंड एप्लीकेशन इज़ द electroplating. Okay, these are the three major effects that are associated with the motion of the current, that is associated with the flow of the current. First, heating. Its reason is due to collision of the charges. Its applications are electrical iron, electrical twister, rods and electrical heaters, then magnetic, and then finally chemical effect. Okay, आज का लेक्चर स्टूडेंट्स कंक्लूड करने से पहले हम लोग एक एग्जांपल को भी सॉल्व कर लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपकी बुक की एग्जांपल नंबर 12.1 है। एग्जाम्पल नंबर 12.1
1 है। दिस एग्जांपल सेज यू दैट एक वायर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्टवर्ड और 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। आप लोगों ने करंट फाइंड आउट करना है और करंट की डायरेक्शन बतानी है। सो सपोज दैट वो जो वायर है वो हम लोग फिगर से स्केच कर लेते हैं और स्केच करके इस एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। सपोज दैट ये वो वायर है जिस वायर में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ऑब्वियसली दिस इज़ द लेफ्ट साइड एंड दिस इज़ द राइट साइड ऑफ दैट वायर। तो इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। Electrons are being moved from right to left. The black arrow is representing motion of electrons. And how much number of electrons? That is 10⁻18 electrons are moving from right to left. What you have to tell, आप लोगों ने दो चीज़ें बतानी है। The first thing that you have to find is the current in wire, and second one is direction of the current. So these two things you have to tell about this example. Okay, it is very simple. सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं करंट की। So in the previous lecture you have seen that mathematical form for the current is simply I, that is equals to Q divided by time, that is time rate of flow of charges is called as current. Q is what? Q is simply the charges, and in the first chapter you have written that Q is equal to N into E divided by T. So N is 10⁻18, E is 1.6 10⁻−19 coulomb, E is 1.6 multiplied by 10⁻−19 coulombs. So you can simply put here values and the time you are given per second. Per second means time is equal to 1 second. So you can just put the values over here and you can find the result easily. Second thing is important, the direction of the current. Okay स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू कि आपकी सारी की सारी बुक कन्वेंशनल करंट के ऊपर बेस कर रही है। सो कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक करंट। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सो इलेक्ट्रॉनिक करंट विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, and conventional current is opposite to that of the electronic current, so conventional current will be from left to the right. So you can tell the direction of both types of the current in a solution. You can first tell the direction of conventional current. The conventional current as opposite to the electronic current is from left to right. It will be from left to right side, left to right. And the electronic current is in the direction of flow of electrons, electronic current, and this would simply from the right to left. So this was all about today's lecture, students. Inshallah, in the next lecture we will be studying a very important concept, that is the Ohm's law. Till that, students, Allah Hafiz. Thank you very much.